Hi guys, welcome back to my channel. So in the Bali series, last vlog तो आपने देखा ही होगा. It was about just exploring the Changi Singapore airport. And उसके बाद today we will start with the actual Bali series. So here we go. जैसे कि मैंने बताया था in the last vlog कि हमने Singapore Airlines बुक किया था and we had a layover of 12 hours in Singapore airport. उसके बाद it was evening time, हमारा evening का flight था and we reached to Bali somewhere around in evening time. So हमारा Bali से like Denpasar से we had first booked our stay at Ubud. So Ubud भी almost 50-60 kilometers away है from airport. So after reaching the hotel itself, it was night time and this is I will just give you a room tour and outside भी वहाँ पे एक swimming pool area था. So yes, this was the room हमने बहुत basic सा book किया था because we were very sure कि हमारा full day all the days will be completely packed with the itinerary because we had so many places to cover. इसलिए हमने एकदम luxurious stay नहीं book किए थे, but definitely I will go to Bali next time and I will have that experience of staying in the luxury stay. So yeah, but even this stay was pretty good. Basic सा था, एक room था, there was a bathroom, hot tub भी था, so that was a add-on thing. But yes, and ये outside area था जहाँ पे there was a swimming pool and here also we can have the floating breakfast. But unfortunately मेरे पास उतना भी नहीं था time नहीं था कि I could have that experience of having floating breakfast. उसके लिए कुछ extra 200 or 300 IDR extra pay करना पड़ेगा. But still that is a very famous experiences of Bali. So yeah, that also I couldn't have. But वो यहाँ पे ही मिलता है. Stay का नाम था Doni House and Villas. This was in the central Ubud and यहाँ पे बहुत सारे stays है which you will get around 2000 to 2500 per night के range में. Even कम ranges पे भी मिलता है. You can check it online and book as per your preference. Also यहाँ पे अभी rainy season start हुआ है from November to February. So this is not the peak season to come here. I mean there are not many of the tourists, so that is one of the plus points which we got. क्योंकि इतना भी भीड़ नहीं था, भीड़ था but इतना ज़्यादा नहीं because the main months are starting from like March to लेके September तक. So this was थोड़ा off season. So next day हमने स्कूटी रेंट आउट किया था जो कि हमने हमारे होटल से किया था. We got it for around 70,000 IDR which is somewhere around 300-350 rupees जो कि बहुत ही अच्छे रेट में हमें मिला था. एंड उसके बाद हम गए थे लोकल शॉप में टू बाय द सिम. सो सिम का रेट भी यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ, इट वॉज 130 के IDR फॉर 24 GB जो कि ये भी अच्छा रेट था बिकॉज हमने 2-3 शॉप्स देखे थे वहाँ पे ज़्यादा कोट कर रहे थे. सो यू नीड टू डू द ट्रायल एंड एरर मेथड जहाँ पे आप थोड़ा चेक इट आउट इन 2-3 शॉप्स एंड देन यू गेट टू नो कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस यू विल गेट इट फॉर. सो आफ्टर दैट एंड हमने करेंसी एक्सचेंज भी किया था फ्रॉम द लोकल मार्केट इटसेल्फ एंड हमें अच्छा एक्सचेंज रेट मिला था. सो द सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ के रोड्स को वी शुडंट अंडर एस्टिमेट बाली के रोड्स को बिकॉज बहुत नैरो रोड्स होते हैं एंड बहुत ही ईजिली वी आर गोइंग टू गेट स्टक इन द ट्रैफिक. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमने भी स्कूटी रेंट आउट किया, ना कि हमने कोई कार रेंट आउट किया बिकॉज वी नो कि डेफिनेटली ट्रैफिक में फंस जाते हैं. इतना जल्दी हम पहुँच भी नहीं पाते टू एनी ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन. सो फ्रॉम उबुद वी वेंट टू द नॉर्दर्न बाली. वहाँ पे एक फेमस टेम्पल है उलंदानु टेम्पल and we wanted to cover it. So it's like 50 kilometers away from Ubud and it took almost like 2.5 hours because of the roads only. फिर भी बहुत कम ट्रैफिक मिला था बट स्टिल बिकॉज ऑफ द रोड्स एंड घाट वाला रास्ता था तो इसलिए इतना टाइम लगा. सो येस, आफ्टर रीचिंग दैट वाज द एंट्रेंस एंड दिस इज़ द इनसाइड एंट्रेंस जहाँ पे एट ऑल द टेम्पल्स ऐसे एंट्रेंस गेट्स होते हैं एज यू कैन सी इन द फ्रंट. ये बहुत ही कॉमनली स्पॉट होता है ऑल ओवर द बाली, स्पेशली फॉर ऑल द टेम्पल्स ऐसे गेट्स होते ही है विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज गेट ऑफ हेवन लाइक दैट. सो येस, दिस वॉज द एंट्रेंस एंड यहाँ से और 3 to 4 किलोमीटर्स आगे देर इज़ वन मोर स्पॉट नोन एज हांडारा गेट. वो भी बहुत फेमस है. इट इज़ ऑल्सो गेट लाइक दिस बट बहुत ही बड़ा गेट है एंड वो गेट एक्चुअल में एक गोल्फ कोर्स का गेट है, एंट्रेंस पॉइंट है. बट इट इज़ वेरी फेमस बिकॉज ऑफ फोटोज़ एंड रील्स इट हैज़ बिकम टू फेमस एंड वहाँ पे भी वो एंट्रेंस चार्जेस लेते हैं. ऑल्सो बता दूँ कि ये टेम्पल का एंट्रेंस फ़ी था 75,000 IDR पर पर्सन. एट ऑल द अट्रैक्शंस अराउंड लाइक 75,000, 50,000, 20,000 लाइक दिस. समझो 100 से 500 तक या समटाइम्स 700 तक भी एंट्रेंस चार्जेस होते हैं. 700 to 1000 तक ऐसा समझ लो INR में उतना एंट्रेंस चार्जेस होता ही है. एंड देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ पे एंट्रेंस फ़ी नहीं होगा. एट ऑल द स्पॉट्स आपको मिनिमम से लेकर कुछ ना कुछ एंट्रेंस फ़ी भरना ही पड़ेगा.
सो येस, सो दिस आई एम वॉकिंग इज़ टूवर्ड्स द उलंदानु टेम्पल। यहाँ से लेफ़्ट साइड में उलंदानु टेम्पल है, एज़ यू कैन सी। थोड़ा बहुत ये ऑफ सीज़न था इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे, बट काफ़ी टाइम बहुत क्राउडेड हो जाते हैं ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स। सो येस, दिस इज़ द टेम्पल। एंड एक बात बता दूँ कि हम बाली के कोई भी टेम्पल्स में हम अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। एज़ पर देयर कल्चर ओनली बालिनीज पीपल कैन गो इनसाइड। वी आर जस्ट गोइंग टू सी द टेम्पल, लाइक आउटसाइड ऑफ द टेम्पल हम देख सकते हैं, बट इनसाइड द टेम्पल to pray we cannot go, only Balinese people can go inside. So that is one of the major things जो मुझे लगा कि why even if we are going, but yeah, we are just going to admire it from outside and we cannot go inside and pray there. So that is one of the things. And ये टेम्पल भी पानी के बीचों बीच है, मतलब एक रिवर है, इट्स बिटवीन द रिवर लाइक दैट। सो येस, ऐसे काफ़ी है। ताना लॉर्ड टेम्पल भी है, देन उलंदानु टेम्पल है, देर आर फ्यू मोर। आई थिंक जो उलुवाटू टेम्पल है वो भी ऐसे ही है, समवेयर नियर द वाटर, इनसाइड द वाटर, इन बिटवीन द वाटर, इट्स लाइक दैट। पॉट पे गार्डन भी था, थोड़ा सा सामने एक गार्डन भी था जहाँ पे मैंने वॉक किया एंड वी वर जस्ट सीइंग। ऑलमोस्ट अभी सनसेट हो ही गया था एंड वी वर प्लानिंग टू गेट बैक टू आवर प्लेस। सो सेम मैंने जो एग्जिट लेते टाइम भी थोड़े बहुत वीडियोस बना लिए नियर दैट गेट। सो आई वुड सजेस्ट कि नो नीड टू गो एट ऑल द गेट्स, हांडारा गेट, लेम्पुयांग टेम्पल का गेट, दिस ऑल इज़ अवॉइडेबल एंड स्किपेबल, बिकॉज हर एक टेम्पल में इतने सारे गेट्स है कि वो आपको वो टाइप के पिक्चर्स या वीडियोज़ या यू विल गेट दैट काइंड ऑफ थिंग। सो आते आते रात हो गया था, इट वॉज नाइट टाइम एंड वी थॉट कि अभी वील हैव डिनर। सो हमारा प्लान ये था कि हम उबुद मार्केट में जाके डिनर करेंगे। एंड आते आते थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज बट व्हीकल्स थे, बट डर था क्योंकि नैरो रोड्स होते हैं एंड स्ट्रीट लाइट्स भी लाइक थे, बट समवेयर तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थे। सो दैट वाज लिटिल कंसर्निंग। एंड यहाँ से हमने एंट्री लिया इन द उबुद मार्केट एंड वहाँ पे भी फेस्टिवल सीजन था, नवंबर या अक्टूबर के टाइम पे थोड़ा कुछ फेस्टिवल था। सो दैट इज़ द रीज़न कि ऐसे ये डेकोरेशंस किए हैं ओवर यहाँ पे। एंड इट वॉज गुड टू वॉच बिकॉज यहाँ पे बहुत लाइवली माहौल हो गया था। एंड ऑल्सो कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे थे विच आई विल शो यू, जो कि आगे मैंने देखा भी था कि वहाँ पे कुछ इवेंट चल रहा था उनका, बालिनीज लोगों का। एंड ऑल द टूरिस्ट पीपल फ्रॉम देयर वर हैड कम देयर एंड वो वॉचिंग दैट। इट वॉज गुड टू वॉच, वहाँ का कुछ कल्चर देखना या समथिंग विच इज़ लोकली बाउंडेड टू द पीपल टू सी लाइक दैट। इट वॉज गुड टू वॉच दैट। एंड यहाँ का माहौल भी बहुत लाइवली था। सो दैट वॉज अ प्लस पॉइंट कि हम ऐसे टाइम पे गए थे जहाँ पे जैसे हमारे लिए दिवाली फेस्टिवल था, उनका भी एक फेस्टिवल चल ही रहा था वो टाइम पे। सो या दैट वॉज इट एंड दिस इज़ हाउ द स्ट्रीट्स वर लुकिंग विद ऑल दिस डेकोरेशंस। हालांकि ऑल द प्लेसेस द रोड्स वर नैरो ओनली। सो येस, बट स्टिल मैनेजेबल था बिकॉज इतना भी पब्लिक नहीं था। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द परफॉर्मेंस ऑफ द लोकल आर्टिस्ट। ये परफॉर्मेंस देख के तो गूज बम्स ही आ गए थे। वी वॉच्ड इट फॉर सम टाइम एंड देन वी केम बैक। वी हैड आवर डिनर में हमने नासी गोरेंग खाया था विच इज़ द लोकल डिश ऑफ बाली। हमने एक वारुंग से खाया था एंड दिस इज़ द वन। एंड आई एम एंडिंग माई व्लॉग ओवर हियर। आई होप you liked it and I hope it was informative. So do like, share and subscribe and see you in the next vlog. Take care. Bye bye.